Hello, my dear students, good morning. I am S.K. Nayak, Kendriya Vidyalaya COD Jabalpur. Today I want to discuss with you a very important chapter, arithmetic progressions. Dear children, in nature we find patterns of same kind occurring in fruits, flowers, grains, etc. You find a definite pattern in petals of sunflowers, spiral on pineapple and coconuts, grain on maize. Okay, so this nature's beautiful contribution in decorative pattern. But can you imagine some pattern in mathematics and numbers also? Yes, my dear students, in this chapter we will discuss about some specific numbers patterns and their nth term and their sum of n terms, okay, and how to generate the formula and what is the application of formula. Understand? So let me start the arithmetic progression. This chapter is very important for you. Our objectives are in this chapter list of some numbers, okay, pattern of some number, series of some number, sequence of some number, then we will come on the arithmetic progression. And if we discuss about the list of number, then we will discuss also about the terms of given sequence, series or AP, identifying list of numbers with common differences, arithmetic progressions, then the nth term of an arithmetic progressions means AP. शॉर्ट में arithmetics progressions को AP भी कहते हैं, okay, and the sum of n terms of an AP. So these are our objectives, but now let me check that a given term is in AP or not. So my dear students, we will discuss through this example these terms are in AP or not. So first term is 2, 6, 10, 14. Here first term is 2, second term is 6. So first we will find out the difference. डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चों? डिफरेंस निकालते हैं A2 minus A1. So this is A1, this is A2, this is A3, this one is A4. So इसी सीक्वेंस में ही हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. A2 minus A1, 6 minus 2, it is 4. A3 minus A2, so also 10 minus 6, 4. A4 minus A3, 14 minus 10, that is also 4. What you observe? Since the differences are common and the given terms are in AP, I declare directly. It means to find out an AP, the most important point is the difference, common difference. फर्स्ट इज डिफरेंस देन कॉमन, वी सर्च द कॉमन. देखिए इन सभी का डिफरेंस 4 है, इनका 4 है, 4, तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? इन सभी का कॉमन डिफरेंस हो गया 4. ऐसे ही सभी सीरीज, सीक्वेंस या किसी भी पैटर्न ऑफ नंबर में अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल मिला, दैट पैटर्न ऑफ नंबर, दैट सीरीज ऑफ नंबर, दैट सीक्वेंस ऑफ नंबर बिकम एपी. एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इसलिए ये मान के चलिएगा हर सीक्वेंस, हर सीरीज एपी में ही होगी, कोई जरूरी नहीं है. अंडरस्टैंड? सो लेट मी टेक द नेक्स्ट. द नेक्स्ट इज 10. नाउ let me observe some pattern from your surrounding, as I said in my earlier introduction. So observe some pattern, petals of a flower, yes, you see.
सो बहुत से बच्चे कहते हैं सर इसमें आपको ऐसा क्या ऑब्जर्वेशन में लग रहा है जिससे आप इस एग्जाम्पल को यहाँ पर दिखा रहे हैं. सी, स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, very small leaf, then some bigger leaf, then और bigger, और big leaf, और big leaf, इससे बड़ी लीफ, और बड़ी लीफ, और बड़ी लीफ. सो याद करिए पिछला एग्जाम्पल, 2 के बाद क्या आया था 6, 6 के बाद क्या आया था 10. सो इसमें भी देखिए फ्रॉम स्मॉल टू ग्रेटर की तरफ जब आगे बढ़ते हैं, या ग्रेटर से एक डायरेक्शन ये हो गया और एक डायरेक्शन ये हो सकता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉमन डिफरेंस सेम चला जाए, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में. इट मींस देयर इज एन एपी. होल्स ऑफ हनीकॉम देखिए. अब इसमें भी बहुत से बच्चे ये पूछने लगते हैं सर इसमें आपको एपी कहां नजर आ रही है. हमको एपी देखिए मैं कैसे बनाता हूं. आई टेक 2 होल्स in first row, then I take 4 holes in second row, then I take 6, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद इस तरह से आगे हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इधर से अगर इस तरह से होल को अरेंजमेंट करेंगे तो हमको इस पैटर्न में भी हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिख जाएगा. ओके, सो नाउ लेट मी टेक अनदर. स्पाइरल्स ऑन ए पाइनएप्पल, सेम जैसा मैंने आपको लीफ में बताया और हनीकॉम में बताया. एंड नेक्स्ट इज नाउ कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न्स. इन ए क्रिकेट मैच द नंबर ऑफ बॉल्स थ्रोन इन एन इनिंग्स इंक्रीजेस बाय 6 बॉल पर ओवर. इंडिया का हर स्टूडेंट जानता होगा कि 1 ओवर में कितनी बॉल्स होती हैं, 6 होती हैं. अब एक बॉलर अगर see this bowler, if a bowler deliver 3 overs तो बताइए वो फर्स्ट ओवर में कितनी बॉल डालेगा 6. सेकंड ओवर करेगा तो फर्स्ट सेकंड का मिला के कितनी बॉल हो जाएगी 12, देन 18, और एक ओवर 4 ओवर डालेगा तो कितनी बॉल डिलीवर कर देगा 24. सेम एग्जांपल वी कैन पुट इन आवर कैलेंडर ऑल्सो. दिस इज द कैलेंडर. वो अलग बात है 2005 का मैं ढूंढ के ले आया. फ्राइडे विल कम आफ्टर 7 days, 14 days, 21 days. सर्च द फ्राइडे एंड सी द एरो. यस यस यस, 7 days, 14 days, 21 days and 28 days. This is an AP. So children, you see, in the case of Friday, the number arranged in vertical way, this is an AP because common difference is same 7 7 7. Can you tell me in this calendar कि इस रो में जो आपका ये थर्सडे का है क्या ये 6, 13, 20, 27 AP में है? ऑब्जर्व करिए. 6 के बाद 13 कब आएगा, क्या ऐड करेंगे उसमें +7. 13 के बाद 20 कब आएगा, जब उसमें +7 करेंगे. अरे कैलेंडर को तो ऐसे हमने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया. सो नाउ लेट मी चेक इन दिस रो वेडनेसडे के में. अरे वाह, 7 + 5 12, 12 प्लस 7, 5 + 7 12, 12 + 7 19, 19 + 7. अरे दिस इज ऑल्सो इन एपी. आई थिंक 2. अच्छा चलिए संडे का चेक करते हैं. ये चेक करिए, 2 + 7 9, 9 + 7 16. My dear students, when you discuss about an AP, you watch closely the calendar in your drawing room. Understand? और इस कैलेंडर से आपको इतना नॉलेज मिलेगा नंबर सिस्टम का कि आप इसमें AP भी ढूंढ लेंगे, आप इसमें इवन और ऑड भी ढूंढ लेंगे, आप इसमें प्राइम और को प्राइम भी ढूंढ लेंगे. सो कैलेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड? मैं कभी इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको इसमें और भी कई चीज़ें बताऊंगा कि अगर इस कैलेंडर के 2/2 का स्क्वायर हम देख लेते हैं. ये देखिए 2 नंबर इधर है, 2 नंबर इस स्क्वायर को देखिए जरा, इनके डायगोनल का सम करिए. 11 + 3 14, सो 10 + 4 14. ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर एंटरटेनमेंट.
but very important. Yes, see next example. The length of the rungs of a ladder decreases uniformly by 2 cm from bottom to top. The bottom rungs in 45 cm in length, the length in centimeter of the first, second, third, eighth rungs from the bottom to the top are respectively. You observe only number. Okay, you observe only number. 45, then 43, then 41, then 39, 37. Okay, leave the number. Observe the difference. 45 minus 2, 43 minus 2, 41 minus 2, 39. If common difference is equal, then what you say about these number? These numbers are in AP. Let me take another example. The salary of rupees 20,000 of an officer increases annually by an increment of rupees 1,000. अब चलिए इंक्रीमेंट आपको समझा देता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में आप पढ़ाई ही नौकरी के लिए कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब करिएगा चाहे प्राइवेट करिएगा, तो इंक्रीमेंट को समझना अभी से जरूरी है क्लास 10 से. इफ ए पर्सन स्टार्ट्स हिज जॉब फ्रॉम रुपीज 20,000, तो गवर्नमेंट और एक कंपनी सेज कि हम आपको एनुअल इंक्रीमेंट एक देंगे. अंडरस्टैंड? एनुअल मतलब एक साल में एक इंक्रीमेंट. गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अक्सर जुलाई में मिलता है या जनवरी का है, जो जैसा ऑप्ट कर ले. तो इस केस में 20,000 के बाद उसका इंक्रीमेंट कितना है? एनुअली 1,000. तो अगर इस ईयर उसको 20,000 हर पर मंथ सैलरी मिलती रही, तो बताइए सेम मंथ में जब उसको 1,000 का इंक्रीमेंट मिल जाएगा, तो अगले पूरे नेक्स्ट ईयर कंप्लीट में उसको कितनी सैलरी मिलेगी? इन एवरी मंथ 21,000. अंडरस्टैंड? फिर नेक्स्ट ईयर जाएगा तो फिर 22,000 हो जाएगी उसकी सैलरी. इस तरह से चलते 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 इन एवरी ईयर हर एम्प्लॉय की सैलरी इस एनुअल इंक्रीमेंट से इंक्रीज होती है. सो 20,000 प्लस 1,000, हाउ मच? 21,000. Yeah, the quantities in the above patterns are listed as below. Let's we discuss some numbers. 6, 12, 18, 24. Second is 7, 14, 21, 28. Third one is 20,000, 21,000, 22,000, 23. ये केस आपका वो सैलरी से रिलेटेड है. ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए. फर्स्ट ईयर में पाएगा 20,000, जब नेक्स्ट ईयर करेगा पूरे साल जॉब तो 21,000. इसमें आप कैसे कहेंगे कि दीज नंबर्स आर इन एपी? बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल. और क्या है आपका फिक्स नंबर वो कॉमन डिफरेंस वाला? 1,000. इन अबव केस 6 plus 6 12, 12 plus 6 18, 18 12 plus 6 18, 18 plus 6 24. और these numbers are also are in AP. क्वेश्चन एक और CBSE में बच्चों अक्सर पूछा जाता है कि what will be the next term? Yes, very good answer. Next term is 30. Come on. 7, 14, 21, 28. यस, ये तो टेबल ही 7 का लग रहा है. 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा कॉमन डिफरेंस 7 है. इसलिए ये सभी के सभी लिस्ट ऑफ नंबर एपी में है. क्या है ये? एपी में है. थैंक यू. नेक्स्ट, सेम वी ऑब्जर्व इन द केस ऑफ एन एम्प्लॉई in increment case. That is not necessary this time discuss again and again. Now let's we discuss about the term. Term is very common words for this chapter. When we start from a number, that is the first term. When we write the second number, that is your second term. Each of the numbers occurring in a pattern of numbers are called term. तो टर्म में भी आप एक बात ध्यान दीजिए कि अभी कुछ राइटर्स टर्म्स को फर्स्ट टर्म को T1 लिखते हैं, T2 लिखते हैं, T3, T4, और अभी जो NCERT और अदर राइटर्स जो लिखना शुरू किए हैं वो A1, A2, A3, A4 डॉट 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 कॉमा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल देखिए, 10, 15, 20, 25. टेल मी फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म 15, थर्ड टर्म 20, fourth term 25. So in algebra
10 को फर्स्ट टर्म को किससे लिखते हैं, स्मॉल a से। ओके, क्योंकि ये सभी चारों नंबर और आगे भी जो आएंगे इसी डिफरेंस पर, वो सभी के सभी एपी में हैं, तो इनका कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, 15 माइनस 10, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5। First term is 10, yes. Each term after the first is obtained by adding 5 to the preceding term. So common difference was 5. So my dear children, in arithmetic progression, एक very important fact मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी नंबर, किसी भी सीरीज, सीक्वेंस, कुछ भी लिखा हो, we have to check the common difference first. और कॉमन डिफरेंस ऐसे नहीं है कि हमने सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया तो हम फ्री हो गए, नो, थर्ड माइनस सेकंड भी चेक करना पड़ सकता है। कभी कभी एक साल सीबीएसई ने क्या किया कि ये बताया, क्वेश्चन पूछा कि बताइए ये नंबर से एपी में है कि नहीं है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट वही था, थर्ड माइनस सेकंड सेम नंबर था, बट फोर्थ टर्म से जब थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो वहाँ मिसिंग था, कुछ डिफरेंट नंबर आ रहा था, वो लिस्ट जो नंबर थी वो एपी में नहीं थी, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। इसलिए प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग का जो डिफरेंस आएगा ना, वही आपका कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आता चला जाए तो समझ लीजिएगा कि वो लिस्ट ऑफ नंबर एपी में है। सो इन दिस केस ऑल्सो एपी की सबसे बेस्ट डेफिनेशन यही है कि आप इस फिक्स नंबर को ध्यान से रखिएगा, फिक्स नंबर बनेगा आपका कॉमन डिफरेंस। इट इज ए पैटर्न ऑफ नंबर ऑफ और सीक्वेंस in which the first term is given and the succeeding term differs from its preceding term by a fixed number। अब ये जो फिक्स नंबर है यही हमारा कॉमन डिफरेंस बनेगा। अब ये कॉमन डिफरेंस कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके, सो एपी में क्या बताया मैंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉमन डिफरेंस। See the list of number 3, 7, 11, 15, 19. My first question is, are these number in AP? चेक करने का वही रास्ता है, 7 minus 3 4, 11 minus 7 4, सभी चेक कर लीजिए, अगर सभी का डिफरेंस 4 आ रहा है, यस, these are in AP। अभी तो इसमें कुछ नहीं किया उसने, फर्स्ट टर्म यो ले लिया है, a is equal to 3 आ गया, और इसमें कॉमन डिफरेंस निकाला तो 4 आ गया। देखिए 7 minus 3, 11 minus, ये सब करते हुए नेक्स्ट वन इज, नाउ सेम क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपसे बोला था, सीबीएसई इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ये टर्म्स एपी में है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, व्हाट प्रोसीजर यू विल अडॉप्ट। सर वेरी सिंपल, वी विल फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। देखिए क्वेश्चन पार्ट ए में 1 4 7 10 में क्या किया उसने, डिफरेंस निकाला, 4 minus 1, 7 minus 4, 10 minus 7, कॉमन डिफरेंस इज 3। It means this is an AP। okay, next B को देखिए, सेकंड माइनस फर्स्ट 4 minus 1, थर्ड माइनस सेकंड 6 minus 4, ओके, एंड लास्ट का करते 9 minus 6, तो वो भी आपका 3 आता, और फर्स्ट वाले में भी 4 minus 1 3 है, बट सेकंड केस देखिए जरा, 6 minus 4 आपका क्या आ गया, 2 आ गया। नो 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 नो, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। So what you say? What you say? Not an AP। बस यही आपको बिगनिंग में सीखना है, सिंपल कॉमन चीज को। बाकी तो आपका ब्रेन एनालाइज करते हुए इस एपी को इतने जल्दी लर्न करेगा कि बिल्कुल आप बिलीव ही नहीं करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ आई वुड लाइक टू शो सम अरेंजमेंट। माय क्वेश्चन इज दिस अरेंजमेंट फॉर्म एन एपी? यस। फर्स्ट प्लेस पर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं कि नहीं है, थर्ड पर आपके 5 हैं, फिर 8 ऑब्जेक्ट्स, 11, फिर 14। क्या ये अरेंजमेंट जो ऑब्जेक्ट्स का किया हुआ है ये एपी है कि नहीं है? हमें ऑब्जेक्ट से नहीं लेना है, नंबर से लेना देना है। सी 2 के बाद क्या आया 5, 5 के बाद क्या आया 8, 8 के बाद क्या आया 11, 11 के बाद क्या आया 14। तो क्या कौन बताएगा कि ये एपी में है? वो बताएगा कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? सिंपल, 5 minus 2 3, 8 minus 5 3, है ना, 11 minus 8 3, 14 minus 11 3। कॉमन डिफरेंस इज सेम, D is equal to 3। Yes, this arrangement form an AP।
क्लियर हो रहा है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट तो हाँ, मैं इस पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप एक एक्टिविटी अपनी एक्टिविटी कॉपी में जरूर बनाएंगे और आपके टीचर भी करवाएंगे सेम एक्टिविटी, वो इस तरह का है। और इससे आप क्या करेंगे, इसकी जनरल टर्म को भी प्रूव कर लेते हैं, सम ऑफ द एन टर्म्स को भी प्रूव कर लेते हैं इस एक्टिविटी से। तो ये एक्टिविटी आप जरूर अपनी कॉपी में, एक्टिविटी कॉपी में करिएगा प्लीज। बट सी द अरेंजमेंट इन फर्स्ट ब्लॉक 1, सेकंड जो आपका पिलर है इसमें कितने स्क्वायर लिए उसने? 1 2 3 4। यस, फर्स्ट हो गया 1 4। तो फिर इसमें कितना लिया है, मैं इस पे लिख देता हूँ 1, दैट इज 2, ये कितने हैं 7, और यहाँ कितने हैं लास्ट में ये 10 है। नाउ क्वेश्चन इज, हाँ सेकंड दूसरा भी दे दिया हमने, दूसरा है 1 4 6 9। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज विच वन इज एन एपी। तो ये पिक्चर देखें ना देखें, हमने कॉमन डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट समझा है ना, वो हमको 30 सेकंड 15 सेकंड में बता देगा कि ये आपकी सीक्वेंस या सीरीज, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर से एपी में है या नहीं है। सो लेट मी टेक यू 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7, इनका कॉमन डिफरेंस कितना आया बच्चों? 3। इनका भी लीजिए, 4 - 1 3, 6 - 4 इट इज 2, बट 9 - 6 इट इज 3। सो कॉमन डिफरेंस यहां का गड़बड़ हो गया 2 वाला ये। सो ये आपका एपी नहीं है, ये आपकी एपी है। तो इन द लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट कि गिवन नंबर्स आर इन एपी, और इफ एनी पिक्चर इज गिवन इन दिस अरेंजमेंट, सो वी कैन ऑल्सो able to tell about an AP. Okay, now see the activity. Using matchsticks, create row of squares as shown below and count the number of matchsticks required in each case. Row containing 1 square, row containing 2 square, row containing 3 square. See the question. Question is, count the number of matchsticks required in each case. Why? Using matchsticks, create row of squares as shown below and count the number of matchsticks required in each case. See the first case, second case, third case. What you observe? Yes, what do you observe? In first square you need 4 matchstick, but in second 2 2 4 6 7, in third 3 3 6 6 plus 4 10. तो फर्स्ट का हो गया कितना 4, देन कितना हुआ 7, देन कितना हुआ 10. इज दिस अरेंजमेंट इन एपी? यू ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स, देन टेल मी. So now let's discuss. An arithmetic progressions is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. So the fixed number is called the common difference D, as earlier I says. मैंने ये भी बताया था कि द कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. वो जो डी है ना, डी बार बार मैं निकाल रहा हूँ, डी कॉमन डिफरेंस है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. इसको इस तरह देख लीजिए, इफ a1 a2 a3 a4 डॉट 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 इज एन एपी, देन हाउ टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस. वही बात हो गई, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड माइनस सेकंड, a2 माइनस a1 कर दो या a3 माइनस a2 कर दो या a4 माइनस a3 कर दो और चेक करते चले जाइए. अगर आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो आंख बंद करके नहीं, खोल के, क्योंकि मैथ्स करने से आता है, लिख के करिएगा कि ये गिवन लिस्ट या गिवन सीक्वेंस एपी में है. नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ ए रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट टर्म. अब आपका असली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू हुआ. अभी तक तो आप एपी एपी समझ रहे थे.
अगर ए आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, फर्स्ट टर्म को, और डी रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉमन डिफरेंस को, तो एपी कैसे बनेगी? बड़ी सिंपल है। A1 हम सर फर्स्ट टर्म ए को बोल देंगे, सेकेंड टर्म को कैसे बनेंगे, इस ए में कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाएंगे, तो थर्ड कैसा बनेंगे, इस a प्लस डी में एक d और ऐड करेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा। तो देखिए हमारी फर्स्ट टर्म कौन है, a, सेकेंड टर्म कौन हो गई, a प्लस डी, थर्ड कौन टर्म हो गई, a प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या बन गई, a प्लस 3d। वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट एंड सो ऑन। 5 में क्या होगा, a प्लस 4d। इट मीन्स वी कैन प्रूव। देखो जैसे देखिए पैटर्न, देखिए पैटर्न क्या बना, a1 a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट डॉट। तो जब हम फोर्थ टर्म तक का निकाल लिए कि फोर्थ टर्म कौन सी होगी, तो हम nth टर्म भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म हो गई a, सेकंड क्या हो गई a प्लस डी, थर्ड क्या हो गई a प्लस 2d और a प्लस 3d। इसका पैटर्न जरा चेक करिए, जब फोर्थ टर्म निकाला तो 4 माइनस 1 3 आया, जब थर्ड टर्म निकाला तो 3 माइनस 1 2 आया। अंडरस्टैंड? जब सेकंड निकाला तो 2 माइनस 1 1d आया यहाँ पे, राइट। तो जब nth टर्म निकालेंगे तो उसी पैटर्न को पकड़िएगा, 4 माइनस 1 3 आया, 3 माइनस 1 2 आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू d। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जनरल टर्म ऑफ n AP। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगा, प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल कंटिन्यू रिकॉल करते रहिएगा। an nth टर्म इसको हम बोलते हैं, और an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो an का मतलब हुआ कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेट्स वी टेक सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम NCERT और अदर बुक्स। यस, सी द पैटर्न और पिक्चर्स। सी, यस, फर्स्ट टर्म a, ओके, सेकेंड टर्म इन दोनों के लिए है, थर्ड टर्म इन तीनों के लिए है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये आपका फोर्थ के लिए है। दिस अरेंजमेंट इज गिवन एन AP। क्यों? क्योंकि सभी का कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। ऐसे देखिए 1 2 3 4, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। अब आप कहोगे सर आप हर चीज में कॉमन डिफरेंस ढूंढ लेते हैं। क्योंकि मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए AP में इन एवरी केस, इन एवरी कंडीशन वी हैव टू क्लियर अबाउट टू कॉमन डिफरेंस। चेक, कॉमन डिफरेंस इज 4, नो प्रॉब्लम। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन nth टर्म और जनरल टर्म, nth टर्म और जनरल टर्म मीन्स वही है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑफ द फॉर्म a plus d, a plus 2d, a plus 3d dot dot dot. You have to notice that the second term has 1d, third term has 2d and fourth term has 3d added. So for example, the 20th term will be very simple, a plus 19d, क्योंकि 20 minus 1 हो जाएगा. So nth term of an arithmetic progression become an is equal to a plus n minus 1 into d. Very good. Let's see an example. A2, D2 or N12. Find An. So first you recall the formula. What is formula of An? An is equal to a plus n minus 1 into d. Put the value. A2, N12 and D2. Simplify. Simplify. An is equal to, your answer is 24. अब इसमें भी क्वेश्चन चेंज हो सकता है कि अगर A और A2 गिवन है और D2 गिवन है तो AP कैसे बनाएंगे. वेरी गुड, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना. अब इसमें D ऐड करो तो क्या आ जाएगा, 2 ऐड करने पे 4 आ जाएगा.
तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से अगर ये सीक्वेंस एपी बनाते चले गए आप, तो ये पक्का मानिए कि 12th नंबर का जब टर्म लिखेंगे ऐसे आगे, तो 12th नंबर का टर्म क्या आएगा, 24 ही आएगा। नाउ चेक दिस वन ऑल्सो। नाउ प्रोजेक्ट, कभी कभी ये भी डिस्कस होता है। क्रिएट ए डिज़ाइन यूजिंग एपी, एक ऐसा प्रोजेक्ट बच्चों को टीचर्स जो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है उसमें अक्सर पकड़ा देते हैं, प्लीज़ कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो बहुत सिंपल सा है, एक सैम्पल डिजाइन मैंने वो CBSE से लिया हुआ है। स्टूडेंट कैन फिल इन डिफरेंट कलर्स टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, बट फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई दिस प्रोजेक्ट इन एपी। बस मेरे लिए तो नंबर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सर्कल, सेमी सर्कल कहाँ तक कंप्लीट हुआ, 2 पर। थर्ड कहाँ जा रहा है, डायमीटर इसका 4 तक। इसका डायमीटर कहाँ जा रहा है, 6 तक। तो मेरे लिए 2, 4, 6 और लास्ट वाला जो आपका दिया हुआ है 8, 2, 4, 6, 8 आर इन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज 2। ओके, तो एक सैम्पल डिजाइन ये भी हो सकता है कि डिफरेंट कलर्स में जब बच्चा करेगा तो उसे रेनबो और तमाम तरह की चीजें याद आती रहेगी। नाउ लेट्स वी डिस्कस सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। माय डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ एन टर्म्स में मैथमेटिशियन, वेरी फेमस मैथमेटिशियन गॉस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सम ऑफ एन एपी का NCERT में भी आप देखिए टॉपिक के नीचे ही डिस्कस किया हुआ है। गॉस की थ्योरम फिजिक्स में भी बहुत 11th 12th में आप डिस्कस करेंगे, बट सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी में आपको बहुत कॉमन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। फॉर द एग्जांपल कि अगर एक एपी कंसीडर किया जाए, a + d, a + 2d और ... a + n - 1 × d, ये एक आपकी एपी हो गई। इसको आप an टर्म बोलेंगे, लास्ट टर्म। ओके, टू फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी वी ऐड एज, कैसे ऐड करेंगे, लिखेंगे इसको इस तरह से। Sn = पहले लिया a, फिर प्लस किया इसमें a + d, फिर प्लस किया इसमें a + 2d ... और फिर इसमें लिख दिया लास्ट, और इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1। मतलब Sn का मतलब हुआ सम ऑफ n टर्म्स। अब हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, इस सम को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। ओके, कैसे लिखेंगे, बैकवर्ड। Sn = जो हमारी यहाँ लास्ट टर्म थी, तो रिवर्स या बैकवर्ड में इसको फर्स्ट बना देंगे। ऐसे बनाते चले जाएंगे, देन a + 2d आएगा, a + d आएगा, और लास्ट में क्या बन जाएगा, a। ये देखिए, जो Sn यहाँ फर्स्ट टर्म था वही Sn यहाँ लास्ट टर्म हो गया, और ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। दिस प्रूफ गिवन बाय गॉस, वेरी फेमस मैथमेटिशियन। अब क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को हमें ऐड कर देना है। जैसे ही हम ऐड करेंगे इन दोनों को, नाउ यू सी Sn एंड Sn बिकम 2Sn। ये देखिए, a + a बिकम 2a। ओके, तो इस तरह का ऑर्डर जब चलेगा, चलते चलते ये सारा पैटर्न किस तरह बन जाएगा, 2a + n - 1 × d एक बार आ गया, फिर 2a + n - 1 × d एक बार आ जाएगा, फिर ... कर देंगे। इसको हम बोर्ड्स पर जब कभी कभी बच्चों से डिस्कस करते हैं तो ऐसा भी बताते हैं, आप यहाँ खाली क्या लिख दो, l। अंडरस्टैंड। तो जब आप इधर आओगे तो क्या लिखोगे, l - d, उससे एक टर्म पहले, है ना। और जब सभी का सम करोगे तो क्या आता चला जाएगा, a + l, a + l, a + l, a + l, और हाउ मेनी टाइम इट इज, n टाइम। तो जब Sn और Sn 2Sn ये बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2a + n - 1 × d। क्योंकि ये ट्वाइस Sn था तो 2 में आकर के हो जाएगा, तो ये बन जाएगा n/2 2a + n - 1 × d। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कितना भी टिपिकल एपी दिया हो, अगर उसकी n टर्म का, 10 टर्म का, 50 टर्म का, 12 टर्म का अगर सम फाइंड करेंगे, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा कीप इन योर माइंड प्लीज। सो हमने 2 फार्मूले डिस्कस कर लिए अभी तक। फर्स्ट हुआ था an = जनरल टर्म वाला। an = क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, a + n - 1 × d, और सम ऑफ n टर्म = आ गया Sn = n/2 2a + n - 1 × d. So now let's we discuss some problems.
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम ये ले लेते हैं। 100, 105, 110, 115, 5 का कॉमन डिफरेंस मुझे अभी से दिखने लगा इनका। ये देखिए कॉमन डिफरेंस 5 है, बट इन्होंने डॉट डॉट करके लास्ट की टर्म दे दी यहाँ। इसको आप हमेशा या तो an बोलेंगे या इसको लास्ट टर्म l लिखेंगे। अंडरस्टैंड? अब आप इसको क्या कहेंगे कि इसमें कितनी टर्म्स हैं अगर इस तरह की देखी जाए, क्योंकि इसने फर्स्ट टर्म से लेकर के और लास्ट टर्म तक दे रखा है, बट बीच में मिसिंग कर दिया है यहाँ पर। तो अब आप कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट यू राइट a, लास्ट टर्म an, जनरल टर्म। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा? सेकेंड माइनस फर्स्ट 5। रिकॉल द फार्मूला। nth टर्म या nth टर्म का क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन पुट द वैल्यू, क्योंकि an आपका लास्ट टर्म है ये वाला, तो आप रखेंगे 500, a की वैल्यू 100, n फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, और d की वैल्यू 5। व्हेन यू सिंप्लीफाई, ये आपका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से आप n की वैल्यू क्या निकालेंगे? कैलकुलेट करते करते n की वैल्यू आ जाएगी 81। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस AP को, जिस कहाँ से स्टार्ट थी? 100 और 105 से। अब अगर क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाए 100, 105 है ना, और 110, कॉमन डिफरेंस 5 का ही है, सेम AP का, और अब यहाँ लिख दिया जाए डॉट 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 डॉट, और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इन दिस AP फाइंड a 81th टर्म, ऐसे। यानी कि 81th का मतलब क्या? n की वैल्यू 81 है, a आपका 100 है, कॉमन डिफरेंस इन दोनों का 5 आया है, तो आंसर पता है बच्चों क्या आएगा? आंसर यही आएगा 500। अंडरस्टैंड? इस तरह से क्वेश्चन को रिवर्स एंड फॉरवर्ड मूव करते चलिए हर क्वेश्चन को, तो आपको बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस भी बहुत छोटी छोटी लगने लगेगी। ओके, एंड एक्सरसाइज जब भी अटेम्प्ट करें, गो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले क्वेश्चन नंबर 1 बनाया ही इसलिए क्योंकि पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही आपको करना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि आप पंक करते गए और आगे बीच में छोड़ते चले गए, इस तरह से मैथमेटिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द सम ऑफ 30 नंबर्स, 30 टर्म्स ऑफ गिवन। ये देखिए इन्होंने ओपनली दे दिया है 12, 20, 28, 36 डॉट 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 30 टर्म्स का आपको सम निकालना है। तो 30 टर्म्स का मतलब n तो आपके पास 30 हो गया, n की वैल्यू। a आपके पास 12 हो जाएगा, यस a 12 हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा? 20 माइनस 12 निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस 8 आ जाएगा। नाउ रिकॉल द फार्मूला, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स का। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, and put the value n/2 means it is half here 30/2. When you simplify this one, I think answer will be 3690. So the sum of terms, how many terms? Sum of 30 terms is 3690. Another problem, find the sum of terms is given AP. This is very interesting. 4, 6, 8 dot 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 200, but in this question n is not given कि how many terms are in this AP. तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? n. First we find out n. So start करेंगे वहीं से a 2, then common difference की जरूरत पड़ेगी, second minus first, ये अंदर 2 छुपा हुआ है, आ जाएगा 4 minus 2 that is 2. So apply the nth general term formula, nth term वाला an is equal to a plus n minus 1 into t. See the children, दो फॉर्मूले ही काम कर रहे हैं, एक जनरल टर्म वाला, एक सम ऑफ n टर्म वाला. So an last term is given how much? 200. Yes, write to 200 put there. a 2 हो जाएगा, n फाइंड करेंगे फर्स्ट, तो d की वैल्यू 2 हो जाएगी, एंड सिंप्लीफाई दिस वन, एंड नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा 100. अब n आने के बाद हमें क्या फाइंड करना है? सम ऑफ टर्म्स. तो टर्म्स तो आई 100, तो इसके लिए अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला. Sn इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. राइट, n 100 आया है तो Sn की जगह पर क्या लिखेंगे? S100. पुट देयर n/2 की जगह 100/2. a की वैल्यू 2 है,
एंड डी आपका पहले ही 2 दिया हुआ था. व्हेन यू सिंप्लीफाई ऑल दिस कैलकुलेशन, सो आंसर विल बी 10100, आई मीन 10,100, यानी कि उन 100 टर्म का जो सम है वो कितना आया, 10,100. So dear students, the difference between two terms of an AP can be formulated as below. Difference of two terms, nth term minus kth term, यानी an minus ak. वही डिफरेंस कैसे आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इससे भी एक सिंपल आइडिया है हमारे पास. तो आपका जो an माइनस ए के है दैट विल बी n माइनस के इंटू डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं. और एक और जनरल आया था, मैं आपको बाद में डिस्कस करके बताऊंगा. व्हेन जनरल फॉर्म ऑफ एसएन इज गिवन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी एपी की जनरल टर्म यानी एसएन गिवन है, तो एसएन अगर गिवन है तो nth टर्म ऑफ एपी कैन बी फाइंड आउट एज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपके एनसीईआरटी का जो थर्ड एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है. एन कैसे निकालेंगे जब एसएन गिवन हो. व्हेन एसएन इज गिवन तो एन निकालने के लिए, एन क्या जनरल टर्म होती है, दैट विल बी एसएन माइनस एसएन माइनस 1. ये देखिए, ये एसएन है, सम ऑफ एन टर्म है, और ये सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म है. अगर यहाँ 10 है तो यहाँ हो गया 10 माइनस 1, 9 हो जाएगा. अंडरस्टैंड. और अगर आप वैसे भी करके देखें, a10 is equal to, that will be a10 s10 minus s9. Understand? Very interesting. So thank you very much students, and keep the momentum. Just you revise from chapter 1 to chapter 5, and I request you, please try to understand all formulas and all application of all formulas and all concepts from chapter 1 to chapter 5, because मैं आपके सामने 30th मई को आऊँगा और जितने भी सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन चैप्टर 1 से 5 तक के अभी पूछे गए हैं स्टैंडर्ड और बेसिक में, उन पर एक डिस्कशन करूँगा आपके साथ छोटा सा. लेकिन आप उस क्लास में ज़रूर आइएगा, हो सकता है आपके लिए वो क्लास बहुत फ्रूटफुल हो इस साल के लिए. सो थैंक यू and thank you very much. All the best. God bless you.